Hello students, welcome to CP classes. How are you all? I hope you all are doing very good. So in our last video you have seen that we covered the topic distance and displacement of the body, and today we will be covering the topic speed, velocity and acceleration. So take your pen and notebook with you so that you can make your notes also. So let's start. So the very first topic of today is the speed. ठीक है. Now हाउ यू विल बी डिफाइनिंग द स्पीड. आप स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि कार क्या कर रही है, धीरे से चल रही है, या कार और यू कैन से एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक. तो जैसे अगर वो बहुत धीरे चल रहा है तो आप बोलते हैं कि इसकी स्पीड बहुत कम है, ठीक है. और अगर आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, बहुत हाई है. तो दैट मीन्स व्हाट डज this indicate? It indicates that the speed of a body gives us an idea how fast or slow that body is moving. So by this we define the speed. So what is the speed? This is defined as the rate of change of position in any direction, right? So when I say the rate, that means that quantity will be divided by the time. That means the distance traveled by the object in per unit time in any direction is known as the speed. So when we define the speed, this is speed is equals to distance over time. Distance over time. ठीक हो गया? So when speed is denoted by s, suppose a body covers a distance of s, this means this, and the time t, then the speed. तो speed is equals to क्या हो जाएगा? s over t. ठीक हो गया. और यू कैन डिनोट दिस स्पीड को जब हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, हियर आई हैव डिनोटेड दिस डिस्टेंस बाय एस. सो व्हेन यू कैन डिनोट इट बाय द डी डिस्टेंस आल्सो. सो देन स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी बाय टी. ठीक है. तो नाउ दिस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. This speed can be zero, positive, but never negative. And the unit is CGS unit. CGS unit is centimeter per second, and SI unit is meter per second. So this ये हो गई आपकी स्पीड. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग इन मच मोर क्लियर, आई हैव एन एनिमेशन वीडियो. गो थ्रू दिस. We know that whether an object is traveling faster or slower than the other object. Consider two objects, object 1 and object 2, both are moving along the same path. So just by looking at their motion, can you tell which one is moving faster and which one is moving slower? Hence we can say that object 1 is moving faster and second object is lagging behind the first one. Hence we can say that object 1 speed is greater than the speed of object 2. So speed tells us that how fast body is moving. Now how do we define the speed? For defining the speed, we are having two factors which are as follows. First one is the distance covered by a body, and second is the time taken by the body to cover the distance. For example, we can take, as you can see, this blue car. This car is moving on a straight road. Can you tell which type of motion it is? Since it is moving in a straight line, the motion will be rectilinear motion. So let it take time 30 seconds to cover the distance. Now the second car, red car, similar, moving to first one, and time taken by it is 40 seconds. So the blue car covers 30 seconds to cover the path length, while the red car take 40 seconds to cover the same path length. Now which will have the greater speed? So by watching data, we can say that the blue car is having more speed and the red car have the lesser speed. Now let the length of the total path is 420 meter. Now for each the car, the ratio is, for the red car you can see that the total distance upon total time. Similarly for the blue car, so from the data we see that the speed of the red car is 10.5 meter per second, and for the blue car it is 14 meter per second. So this shows that the speed of object is total distance upon total time taken, and speed of blue car is greater than the speed of red car. Similarly, let's take another example. It takes 20 seconds to cover the path length. Now what will be the speed of the white car? So its speed is 21 meter per second. So as we can see that the white car, red car and blue cars, सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें किसकी है? वाइट कार की.
speed of white car is much more than the red and blue car. Okay, now we'll take the SI units. See, its SI unit is meter per second and the other units of the speed are kilometer per hour, miles per hour, feet per minute. So these are the units of speed. Now the speed is divided into three categories, that is uniform speed, non-uniform speed and the average speed. ठीक है, so let's start one by one. What is uniform, what is non-uniform and what is average speed. So when we talk about the uniform speed, a body has a uniform speed if it travels the equal distance in equal interval of time. So and no matter what the टाइम इंटरवल्स में भी, ठीक है, तो जितनी अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जाम्पल I can say that a car is having a uniform speed of 60 किलोमीटर. मान लीजिए कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या करेगा, वो कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा विद इन हाफ एन आवर में चलेगा. ठीक है, और इससे अगर आप और डिवाइड करते हैं तो 15 हो जाएगा किसमें, उसके एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर. ठीक, एंड व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है, 1 मिनट में कितना चलना पड़ेगा उसको, 1 किलोमीटर. और अगर आप सेकंड का हिसाब लगाना है तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/60 किलोमीटर एवरी सेकंड. सो दिस इज द क्या आ गया, ये आपका रेशियो आई, किस तरीके से आपका बॉडी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है. ओके, बट in actual practice the speed of a body rarely remains uniform. Okay, so for a long time, मतलब ज़्यादातर टाइम आपको कांस्टेंट नहीं दिखाई देगी. if however the speed of a body is known to be constant, then you can find out exactly how much distance it travel in a given time interval. So this is the uniform speed. And when we talk about the non-uniform speed, it covers unequal distance in equal interval of time. Then the body is said to be non-uniform speed, or you can say the variable speed. Okay. So for example, a car running on a busy road. तो इसका मोशन कोई भी हो सकता है ना. अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, तो इसको यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है फिर इसको गाड़ी से जानी पड़े. तो इसका जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में. so this means this body is said to be non uniform speed. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन लैंडिंग ऑन अ रनवे. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज द एवरेज स्पीड. नाउ द थर्ड वन इज द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. ठीक है, जब आप कार से जाते हैं या बस से जाते हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द स्पीड ऑफ अ कार एट अ कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे हमें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, तो कहीं पे अपनी स्पीड ही हमें धीरे करनी पड़ती है, तो ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज यूजुअली नॉट कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body is divided by the time gives us the average speed. So this is the formula for the average speed. Average speed is equals to total distance upon the total time taken. For example, I say that the distance that the body covers a distance of 100 kilometers in 4 hours. ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, तो टोटल डिस्टेंस उसने 100 कवर कर रखी है और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम कितने 4 आवर में कवर की है. दैट मीन्स कितनी हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी. तो दिस इज द एवरेज स्पीड. ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल. लेट्स सी, a car travels first half distance with a uniform speed u and the next half distance travel with a uniform speed v. So find the average speed. So let's solve this numerical. So as you can see in this numerical, the first half distance is d by 2 and the second half distance will be again d by 2. Then the total distance covered will be d by 2 plus d by 2. Okay, see, this is the total distance d. For the first half it will be d by 2 and for the second half it will again be d by 2. Okay, so now we have seen the distance, that is total distance is equals to d. Now total time will be equal to t1 plus t2, that will be equal to t, and t1 equals to d by 2 upon initial speed is u and final speed is v. ठीक हो गया, तो इसमें जो हो जाएगा t1 इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन
डिस्टेंस, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो उसी का हमने रेसिप्रोकल यहाँ पे कर दिया है और इसको ऐसे रखा है। देन T2 इज इक्वल टू d/2 ओवर फाइनल स्पीड कितनी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी जो उसकी v आएगी। नाउ द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 t1 प्लस t2, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जब हमने ऊपर इसको ऐड किया था तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d एंड टोटल टाइम विल बी d/2 अपॉन u प्लस d/2 अपॉन v। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट d अपॉन d/2 1 upon u plus 1 upon v. Okay, so after solving we get 2 upon u plus v upon uv and the final average speed will be now 2uv upon u plus v. So this is the average speed, ठीक है। तो जब कार ने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करा विद यूनिफॉर्म स्पीड u और नेक्स्ट हाफ विद यूनिफॉर्म स्पीड v, तो इसकी एवरेज। नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल, द ट्रेन A traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. So which train traveled faster? So let's see. Now solution for this numerical will be train A traveled a distance of 120 km in 3 hours, that means d1 equal to 120 km and t1 will be equal to 3 hours. So s is equals to d1 upon t1, this will be s1. तो इसमें कितना हो जाएगा 120 upon 3, that will be equal to 40 km per hour. Okay, now for train B, the distance d2 will be equal to 180 km and time t2 is equals to 4 hours. Then again s2 is equals to d2 over t2. Okay, now 180 over 4, so this will be equals to 4 4s are 16 and then 5, that means 45 km per hour. So now from the data we can see that कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। S1 स्पीड इज इक्वल्स टू 40 km per hour and S2 इज इक्वल्स टू 45 km per hour. That means S2 is greater than S1. तो इसमें जो स्पीड आपकी आ जाएगी B train travels faster. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द वेलोसिटी। जब आप स्पीड के बारे में पढ़ते हैं तो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि कितनी फास्ट और कितनी स्लो आपकी गाड़ी चल रही है। कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कितना फास्ट स्लो उसका मूव कर रहा है, बट एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी डिफाइन नहीं करी गई थी। तो दस टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ मूविंग कार वी शुड ऑल्सो नो द डायरेक्शन इन विच द कार इज मूविंग, राइट। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि अगर हम स्पीड ऑफ कार को जब डिफाइन करते हैं विद द डायरेक्शन, तो दैट टर्म इज द वेलोसिटी. So that means the velocity of a body is the distance traveled by it in per unit time in a given direction. Here term will become कि डायरेक्शन के साथ में जब उसको आप डिफाइन करते तो क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका वेलोसिटी बोलेंगे. एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो आ रहा है और साथ साथ में उसकी क्या है डायरेक्शन को भी हम डिफाइन करते हैं. तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी वर द वेक्टर क्वांटिटी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, अ वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक है, एंड द CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी. एंड नेक्स्ट this velocity is of three types, that is uniform velocity, non-uniform velocity and the average velocity. So we'll be studying this one by one. Velocity: if an object travels in a specified direction in a straight line and moves the distance in every second, so that we say the velocity is uniform. Thus definition wise what we can say, that a body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time. ठीक है, ये important factor है. और साथ ही साथ में क्या आएगा इसमें आपका डायरेक्शन के बारे में जो हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे. and no matter how small time interval may be, but the velocity can be
change by the two ways, by changing the speed and by keeping the speed constant but by changing the direction. ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं. तो जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और तब हम उसको कैसी वेलोसिटी कहते हैं, आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा. इस केस में जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी. इवन इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म. तो वो दोनों कंडीशंस इस पे सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म. एंड द कंडीशंस फॉर विच you can say that the velocity is uniform, body must cover the equal displacement in equal interval of time and the direction of motion of body should not change. So these are the two conditions. वो जो आपको पहले बताया था वो था कि आप velocity को कैसे change कर सकते हो, ठीक है. और यहाँ पे these are the two conditions, and for non-uniform velocity it should cover an equal displacement in equal interval of time, and second is the it should cover equal distances in equal interval of time but its direction must change. ठीक है, उसकी direction में क्या होना चाहिए, आपका change होना चाहिए. So this is uniform velocity and the non-uniform velocity. For example of non-uniform velocity, we can take the circular motion, right? A particle may have a constant speed but it changes direction continuously. ठीक है, जैसे ये क्या है आपका सर्कुलर मोशन में है. अभी इसके अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, फिर जब यहाँ पे आएगा तो इस साइड को, फिर जब यहाँ पे आएगा तो इधर की तरफ को, फिर जब यहाँ पे आएगा तो इस साइड को. दैट मीन्स इसकी स्पीड में भी कांस्टेंट बट इसकी डायरेक्शन क्या करिए, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है. तो दस द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म. सो दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. And one more point is that speed and velocity are not always equal in magnitude. Let us understand this topic with the help of an example. Suppose a boy runs 100 meter in 50 seconds. ठीक है, वो अपने घर से जा रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ अपने घर से मान लीजिए वो शॉप को गया है और 100 मीटर कवर कर रहा है इतने में. तो जब आप उसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100 ओवर कितना हम कर देंगे, 100 ओवर 5, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 सेकेंड वी हैव टेकन, राइट. तो 50 से यानी कि कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड. स्पीड विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब जब हमने इसको स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी डिफाइन करी थी कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. अब आप जब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, बट आप अब क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इन दिस वी सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल. बट क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगी, बॉडी की इक्वल नहीं होंगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड. ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि कितना फास्ट मूव कर रहा है वो कौन बताता है, उसकी स्पीड बताती है. एंड इट टेल्स द रेट एट and at which direction it is changing its position. ठीक है, तो ये velocity होगी. Speed is a scalar quantity, this is a vector quantity. Speed is a rate of motion and the rate of change of position you can say. but ये यहाँ पे आएगा क्या आएगा, change of displacement. ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ स्पीड इज द मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये क्या कंटेन करता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को कंटेन करता है. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें तो हाउ फास्ट माई हैंड इज मूविंग टू स्लेप्ट ऑन योर फेस, दिस इज स्पीड. ठीक है, आपको टीचर कितनी जो थप्पड़ मार रहा है वो क्या है, उसका स्पीड है. लेकिन आपकी जब आपको थप्पड़ पड़ता है तो फिर क्या होगा, आपकी जो फेस है वो फ्रॉम राइट से लेफ्ट की तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है. तो दैट मीन्स दिस इज वेलोसिटी. दिस इज अ नाइस एग्जाम्पल. नेक्स्ट, बाय द फॉर्मूला वाइज स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, that is shortest distance upon time including the direction, and the unit is kilometer per hour. this is the biggest unit. ठीक है, वैसे ऐसा यूनिट अगर हम बात करें तो दोनों की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. ठीक, so this here unit is 60 किलोमीटर पर आवर इन ईच डायरेक्शन. दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन को भी डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं करते हैं. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट numerical. A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate the speed and velocity. So now let's see the solution of this numerical. See, now the solution for this is speed is equals to again distance upon time, distance traveled upon time taken,
Here distance traveled is 200 kilometer and time taken is 5 hours. So 5 4 is 20, that means 40 kilometer per hour. Now velocity is equal to displacement upon time taken. This will be equal to 200 kilometer towards north. ठीक है, this is displacement, so we'll be mentioning the direction here. 200 kilometer north upon the total time taken is 5 hours. So that means on solving we get 40 kilometer towards the north. So this is the solution for the numeric. Now the last topic is the acceleration. ठीक, तो जब आपने देखा है कि वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करती है तो आप क्या कहते हैं कि बॉडी इज सेट टू बी एक्सेलरेटिंग. फॉर एग्जांपल, अगर कार को आपने रेस्ट से स्टार्ट करा है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो अब क्या होगा, यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट करेगी. ठीक है, उसका एक्सेलरेशन होगा. तो दैट मीन्स बाय डेफिनेशन वाइज व्हेन वी डिफाइन द एक्सेलरेशन व्हाट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर हम यहाँ पे कहेंगे पहले तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड टाइम इज t. सो बाय अब सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम इसको ले लें तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू ओवर t एंड इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड होगी और इसकी कितनी होगी, सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. It is a vector quantity. ठीक है, and the acceleration is taken to be positive if its direction of velocity and negative and when it is opposite to the direction of velocity. So these are the sign conventions. And negative acceleration is known as the retardation or deceleration. ठीक है, तो ये एक important term है. अभी हम इसको देखेंगे न्यूमेरिकल में. जब आपके acceleration की वैल्यू नेगेटिव आती है, सपोज यू आर हैविंग एन acceleration of -3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपका बॉडी रिटार्ड कर रही है. Now the next is the type of acceleration, again यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. तो जब आपकी वेलोसिटी कार की इंक्रीज करेगी देन कार को फिर से हम एक्सेलरेटिंग कहते हैं. और अगर कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज करती है तो यानी कि वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, आपका यूनिफॉर्म. तो बाय द डेफिनेशन वाइज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक हो गया. And some other examples we can take like the motion of a bicycle going down on the slope of a road. ठीक है, जब राइडर पैडल नहीं कर रहा है और वो स्लोप में नीचे की तरफ को जा रही तो वो भी किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल आ जाएगा. और यू कैन से द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, next is the uniform acceleration. Uniform acceleration what it is, a body has a non uniform acceleration. जब क्या होगी, उसकी velocity तो increase कर रही है but by unequal amount in equal time interval. ठीक है, then you can say by the definition wise when a velocity of a body changes by unequal amount in equal interval of time then the acceleration is said to be non uniform. ठीक है, next is that इसको for example the motion of a car. ठीक है, and what you can take that in crowded city. ठीक है, जब आपकी मोशन ऑफ अ कार जब मतलब एक बिजी रोड पे जब चल रहा है तो वो किस टाइप का एक्सेलरेशन दिखाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल that a driver decreases his speed a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. So find the acceleration of car. Let's see कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रही है लेकिन यहाँ से कैसे 25 मीटर पर सेकेंड से किस में डिक्रीज हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड में हो रही है. अब जो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे वो कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा. क्यों, क्योंकि a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी होता है एंड हेयर दिस u इज ग्रेटर देन v. ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज दिस रिटार्डेशन. रिटार्डेशन के बारे में हम बात करते हैं तो क्या होगा, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एंड द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस दैट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज द रिटार्डेशन एंड इट विल हैव द सेम यूनिट एज द एक्सेलरेशन ओनली. Okay, so now for this is u is equal to 25 meter per second, v is 10 meter, t5, then acceleration
is equals to v minus u over t. That means 10 minus 25 over 5, that will be equal to minus 15 by 5, that is minus 3 meter per second square. So its SI unit is meter per second square. This is the acceleration of the car. Since the acceleration is negative, that means it is retardation. तो हमने आज देखा कि कैसे स्पीड को डिफाइन करना है, कैसे वेलोसिटी एंड कैसे acceleration को, and we have also done the numericals also, and here are some tips for the numerical. First is that if a body starts from the rest, तो इसकी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या आप ले लेंगे, 0 ले लेंगे. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ है कि a body starts from rest, दैट मीन्स आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकिंग u इक्वल टू 0. और अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बोलता है कि if a body comes to rest, ठीक है, अगर अब बॉडी किस पे आ रही है, आपकी रेस्ट पे आ रही है, चलते चलते बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक लग गए हैं अब आपकी बॉडी में, मतलब जो भी कार चल रहा है, बस चल रहा है, जिस भी चल रहा है, तो अब आपका फाइनल आपने ब्रेक लगाया, तो दैट मीन्स वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. और अगर बॉडी मूव करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. सो दीज आर द टिप्स फॉर द न्यूमेरिकल, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में. सो स्टूडेंट्स, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. इफ एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं. एंड आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. ठीक है, जितनी आज हमने चीज़ें पढ़ी हैं आप लोग को समझ में भी आई होंगी. और येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर learning. Share with your friends also. Thank you.